ہمارے علماء نے، ہمارے ذاکروں نے یہ فیصلہ لیا کہ دیکھیں اب علی ولی اللہ کتنا زیادہ پھیلا دیا جائے، اتنا زیادہ پھیلا دیا جائے کہ جہاں مجلس ہو، جہاں محفل ہو، نماز ہو، جہاں بھی عبادت کا کوئی مقام ہو، سب سے پہلے وہاں پر نعرہ لگایا جائے علی ولی اللہ، صلوات پڑھیں محمد والے۔ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ صرف بغض مولا کائنات، مولا سے بغض کا نتیجہ۔ اور روایت میں یہ بھی ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی اور اہل بیت کی محبت اس کے دل میں جا ہی نہیں سکتی کہ جس کی ماؤں نے امانت میں خیانت کی۔ تو آج جو یہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں، گویا یہ اپنے اوپر اعتراض نہیں کر رہے، گویا یہ اپنے نسخوں پر اعتراض کر رہے ہیں، گویا یہ اپنی ماؤں کی کمی بیان کر رہے ہیں، گویا یہ بیان کر رہے ہیں دیکھو ہمارا نطفہ پاک نہیں ہے، اگر ہمارا نطفہ پاک ہوتا، ہمارا نطفہ صحیح ہوتا، ہم اگر حلالی ہوتے تو کبھی علی سے بغض نہ رہتا۔ سب اپنے محمد والے محمد۔ ہر دور میں، چاہے وہ اول کا دور ہو، چاہے ثانی کا دور ہو، چاہے ثالث کا دور ہو، جب بھی کوئی بڑی مشکل آئی ہے، جب بھی کوئی مشکل آئی ہے جو حل نہیں ہوئی ہے، تو لوگوں نے رجوع کیا کس کی طرف؟ علی بن ابی طالب۔ کیوں؟ جانتے ہیں کہ ہر مرض کی دوا صرف اہل بیت کے پاس ہے، اہل بیت کے علاوہ ہر مرض کی دوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک عالم آتا ہے، آنے کے بعد غالباً خلیفہ ثانی کے دور میں آنے کے بعد کہتا ہے میرے کچھ سوال ہیں، اگر آپ یہ سوال کے جواب دے دیں تب میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ اصل خلیفہ ہیں، یعنی آپ جو ہیں رسول خدا کے جانشین ہیں۔ عالم بہت بڑا تھا اپنے زمانے کے، آیا دربار سجا، دربار سجایا گیا، درباری بیٹھے ہوئے تھے، دربار میں ایک سے ایک عالم بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایک سے قاضی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس سے کہا اپنا سوال بتا، کہا میرا سوال تو یہ ہے، یہ بتاؤ پہلے آپ لوگ یہ طے کرو کہ رسول خدا کی جو معراج تھی وہ جسمانی تھی یا روحانی تھی؟ دیکھیں میں نے کیا کہا کہ ہر مرض کی دوا صرف اہل بیت کے پاس ہے۔ کہا یہ فیصلہ کرو کہ رسول خدا کی جو معراج ہوئی تھی وہ جسمانی ہوئی تھی یا روحانی ہوئی تھی؟ آپ سوچیں، کہا تو اپنا سوال بتا۔ کہا چلو ٹھیک ہے میں اپنا سوال بتاتا ہوں۔ کہا میرا سوال یہ ہے، اچھا آپ یہ بتائیں آسمان سات ہیں اور ساتوں کیا ہیں؟ جس طریقے سے پیاز پہ چھلکا ہوتا ہے، ایک پرت کے اوپر دوسری پرت، دوسری کے اوپر تیسری، تیسری کے اوپر چوتھی، چوتھی کے اوپر پانچویں، اسی پرت کی طرح یہ آسمان بھی۔ تو جب رسول خدا آسمان پہ گئے معراج کے لیے تو یہ آسمان پھٹا کیسے؟ پھر رسول خدا جب آ گئے تو آسمان جڑا کیسے؟ اب سب درباری علماء جو ہیں خاموش، خلیفہ نے حکم دیا درباری علماء کی طرف، عالموں کی طرف، فاضلوں کی طرف، آپ اس کے سوال کا جواب دیں۔ ایک بزرگ نے دوسرے بزرگ کی طرف دیکھا، دوسرے تیسرے کی طرف دیکھا، تیسرے چوتھے کی طرف دیکھا، لوگ صرف ایک دوسرے کے چہرہ دیکھ رہے، لوگ صرف ایک دوسرے کو دیکھ رہے۔ اتنے میں جو ان میں سب سے زیادہ بزرگ تھے لوگ ان کی طرف مخاطب ہوئے، آگا آپ بتائیں۔ کہا رکو مجھے سوچنے دو۔ جب انہوں نے سوچا، سوچنے کے بعد کیا کہا؟ کہا دیکھیں رسول خدا کی جو معراج ہوئی تھی وہ جسمانی نہیں ہوئی بلکہ روحانی ہوئی۔ وہیں سے یہ عقیدہ چلا روحانی ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہیں سے جو یہ عقیدہ چلا ہے کہ رسول خدا کی معراج جسمانی یا روحانی کی جو جھگڑا چلا، جو لفڑا چلا ہے، وہیں سے یہ چلا۔ انہوں نے وہاں پر یہ قائل ہو گئے کہ رسول خدا جب جواب نہ دے پائے تو کہا رسول خدا کی معراج ہوئی تھی وہ جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہوئی تھی۔ کہا کہ میں تانے نہیں ہوئی جواب سے۔ پھر اس نے کہا میں یہ جواب نہیں مانتا۔ تو عالموں نے کہا کہ اس کی اتنی جسارت ہے، یہ خلیفہ کا حکم نہیں مانتا، یہ خلیفہ کی بات نہیں مانتا، دربار میں آ کے خلیفہ سے بغاوت کر رہا ہے۔ عالموں نے فتویٰ دیا کہ خلیفہ سے کہا اے خلیفہ
اس کو قتل का फतवा दे दे। कहा ठीक है, मुझे आप तो कत्ल कर सकते हैं, कत्ल का फतवा दे दे, कत्ल कर दे, लेकिन ये जान ले कि जो दीन मोहम्मद लेके आए थे वो दीन आप लोगों के पास नहीं है। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकते, सवाल का जवाब ना दें, मुझे कत्ल कर दें, लेकिन ये जान ले आप जो दीन मोहम्मद लेके आए थे, जो दीन मोहम्मद मुस्तफ़ा लेके आए थे, वो दीन ये आपका नहीं है। कहा क्यों? कहा अगर वो दीन होता, अगर वो मज़हब होता, वही दीन होता, वही इस्लाम होता, तो आप मेरे कत्ल का फतवा ना देते, बल्कि मुझे अपने जवाब से कहा नहीं करते, बल्कि अपने जवाब मुझे आप बनवाते। चुनांचे एक अहले बैत का चाहने वाला था, मजमा एकदम खामोश था, इतने में खड़ा हुआ एक शख्स मुस्कुराया, मुस्कुराने के बाद कहा अरे खलीफा मुझे इजाज़त दे, मैं कुछ बयान कहा एक शख्स ऐसा है जो इस सवाल का जवाब दे सकता है। कहा वो कौन? कहा वो है औलाद नबी, वो है औलाद नबी। कहा कौन है? कहा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम है, वही तेरी मुश्किल का हल कर सकते हैं। चुनांचे बुलाया गया, जब बुलाया गया इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को, आए इमाम, आने के बाद दरबार में आए, दरबार में जैसे ही मौलाए तशरीफ लाए, एक मरतबा जो दरबार पूरा खामोश था, पूरे दरबारी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और लोग कहने लगे अब मुश्किल कुशा आया है, अब मुश्किल कुशा आया है, अब इस मसले का हल हो जाएगा। आए दरबार में, आने के बाद उस आलिम के मुखातब होने के बाद कहा तेरा सवाल क्या है? कहा मौला मेरा सवाल ये है, पहले आप ये बताएं कि ये जितने आलिम है दरबार में सब ये कह रहे हैं कि रसूल खुदा की मेराज हुई थी, जिस्मानी नहीं हुई थी बल्कि रूहानी हुई थी, आपका क्या ख्याल है इस सिलसिले में? कहा मेरा ख्याल ये है, मेरा मानना ये है कि रसूल खुदा की मेराज जो हुई थी वो जिस्मानी हुई थी, जिसमें कि साहब गए थे मेराज पे। कहा ठीक है, फिर मेरे सवाल का जवाब दे दें। कहा जवाब सवाल क्या है? कहा मौला ये आसमान जो है 7 आसमान है, तो 7वां आसमान परत दर परत है, क्या छिलके की तरह। जब रसूल खुदा मेराज पे गए तो यह आसमान फटा कैसे, यह आसमान फिर जुड़ा कैसे? चुनांचे फौरन मौलाए छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने उससे सवाल कर लिया, अच्छा तू पहले मेरे इस सवाल का जवाब दे दे, जनाबे आदम जब है जन्नत से नीचे आए तब आसमान फटा कैसे, फिर आसमान जुड़ा कैसे? सवाल पर मोहम्मद वाले पहले ये बता, पहले रसूल खुदा मेराज पे गए थे या पहले आदम आए थे? खामोश। फिर कहा देख मैं सवाल नहीं कर रहा, मैं तेरे सवाल का जवाब दूंगा। कहा अच्छा ये बता दो कभी कश्ती का सफर किया है दरियाओं में? कहा हाँ मौला बहुत बार किया। कहा अच्छा ये बता जब तू कश्ती पे सवार होकर दरिया में सफर करता है तो सामने जब जाता है तो सामने का पानी फटता कैसे है और पीछे दरिया कश्ती के पानी जुड़ता कैसे है? खामोश। कहा सुन तेरे सवाल का जवाब यही हो गया, जिस तरीके से कश्ती जो है पानी में जाती है, सामने से रास्ता बनाते जाती है, पानी को फाड़ते जाती है, फिर पीछे से पानी को जोड़ते जाती है, इसी तरीके से रसूल खुदा मेराज पर गए, आसमान को फाड़ते गए, पीछे से आसमान जुड़ता गया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले में। अज़ीज़ान मोहतरम, जब भी इस्लाम की कोई वक्त आता है, जब भी इस्लाम की कोई मुश्किल आती है, वहाँ पर जहाँ पर खलीफाओं की अक्ल ज़ाहिर हो जाती है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ काम आते हैं। बस मैं निकाल नहीं होगी उसकी मर्जी से, लेकिन आप इंसाफ से बताएं जहाँ लोग हर मुश्किल के हल के लिए जाते थे, हर मुश्किल का हल लेके जाते थे, जहाँ पर लोग जाते थे जाने के बाद कभी खाली नहीं वापस आते थे, जहाँ पर लोग जाते थे जब कभी भी कोई इस्लाम का खतरा आता था, जब भी कोई इस्लामी वक्त आता था ऐसा जहाँ कोई जवाब न दे पाता था, लोग रजू करते थे, जाते थे ऐसे बैठ करके जाते थे, अपने सवाल का जवाब दे कर आते थे। क्या आप इंसाफ से बताएं क्या उनके साथ लोगों ने इंसाफ किया? वादे रसूल कायनात आप देखें
जिस दर पे लोग जाते थे बाकायदा सलाम करते थे। रसूल खुदा की वफात के बाद क्या लोगों ने ये सिलसिला जारी रखा, जाते तो थे दर दहरा पे, कभी कोई आग वगैरह लेके जाता था, कभी कोई जाता था कहता था अरे जहरा नबी को बाहर निकाल दो, नहीं हम घर में आग लगा देंगे। कभी कोई जाके कहता था अरे अली अपनी दौलत से कह दो, अपनी बीवी से कह दो, रसूल की बेटी से कह दो, ये तो दिन में रोए करे, ये तो रात में। क्यों? इसलिए कि जब आपकी जहरा रोती है तो हमारी अगर रात में रोती है तो हमारी नींद में खलल पड़ता है, अगर दिन में रोती तो हमारे कामों में खलल पड़ता है। आप थोड़ा इंसाफ से बताएं ये सब कैसे उम्मती थे, कैसे थे रसूल को मानने वाले कि रसूल की आँख बंद होते ही यहीं तक नहीं जुल्म खत्म हुआ, रसूल की वफात के बाद जुल्म शुरू हुआ है, ये जुल्म आके करबला तक पहुँचा। करबला में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया, शहीद करने के बाद ये काफिला जब जिंदाने जब शाम की तरफ रवाना किया गया, एक सफर मुजफ्फर को ये कैदियों का काफिला जब दरबार में पहुँचा, दरबार में जब ये काफिला पहुँचा, पहुँचने के बाद एक मतलब दरबारियों ने कहा कि अभी दरबार में काफिला न लाया जाए, इसलिए कि अभी दरबार सजाए जाएंगे, अभी दरबार आरास्ता किए जाएंगे। चुनांचे हर तरह की अजीज़ें अहले बैत इस्लाम को दी गई है। उनकी मसाइल में बीबी सकीना भी बोलना चाहता हूँ, तमाम ज़रा आप सोचें हमारे और आपका उसूल क्या है, हमारे और आपका होता क्या है। अगर पूरी दुनिया से चला गया है, अगर उसका बच्चा छोटा सा है, 4-5 साल का बच्चा है, तो लोग कभी उसको उसके बाप की कमी का एहसास नहीं होता। हमेशा कोई भी आता है, उसका चचा आया, चचा आके कभी गोद में उठा लेता है, भाई आया कभी भाई गोद में उठा लेता है, तो मोहल्ले के लोग आके गोद में उठा लेते हैं। उठाने के बाद एक ही जुमला कहते हैं, बेटा अरे मेरे लाल तुम गम न करियो, तुम्हारे बाबा नहीं, हम लोग हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी कोई मुश्किल होगी हम लोगों से कहना, हम आपको मुश्किल को आसान करेंगे। हाँ बाबा सकीना भी ऐसे ही थी, 4 साल की जब वादे में इमाम हुसैन इस्लाम जब इमाम हुसैन शहीद हो गए, अली अकबर शहीद हो गए, कासिम शहीद हो गए, एक मरतबा बीवी क्या सोचती थी कि अभी लोग आएंगे तसल्ली देंगे, अभी लोग आएंगे दस्ते शफ़क़त करेंगे। हाँ बाबा बाद इमाम हुसैन शाम गरीबा के वक्त लोग आए तो आने के बाद अभी सकीना यही सोच रही थी कि आएंगे लोग यतीमों को जैसा बर्ताव मेरे साथ करेंगे, लोग मेरे सर पे दस्ते शफ़क़त करेंगे, लोग मेरे सर पे दस्ते शफ़क़त करेंगे। हाँ बाबा लोग आए तो आने के बाद जनाब सकीना को कोई तमाचे मारता है, कोई उल्ट मारता है, कोई ताजियाने मारता है, कोई तमाचे मारता है। जब कोई तमाचे मारता था, एक मरतबा सकीना बेचैन होकर दरिया की तरफ रुख करती थी, रुख करने के बाद कहती थी ऐ मेरे चचा अब्बास, ऐ मेरे अम्मू अब्बास, आप बड़े शफ़क़तों से पालते थे, आप कभी मेरे रुखसार पर गर्द नहीं आने देते थे, लेकिन आपके बाद ये जालिमों ने मेरे रुखसार को तमाचों से लाल कर दिया। खुदा आपको कोई गम न दे। में करबला के अगरत ये कि जिंदाने शाम में जब ये काफिला कैद हो गया ना, कैद होने के बाद यजीद मजनून को हुक्म आया कि हुसैन की कोई एक चहेती बेटी थी, हुसैन किसी एक अपनी बच्ची को बहुत ज़्यादा चाहते थे, कहा चाहते थे, उसका नाम सकीना है, कहा मैं ये चाहता हूँ कि सकीना को उसकी माँ के साथ न रखा जाए, उनकी पुखियों के साथ न रखा जाए, तब कैसे रखा जाए। कहा सकीना को जिंदाने शाम में एक गुरफे में अकेला रखा जाए। हाँ अरबाब अज़ा अभी ये हुआ ही था, इल्मलूम ने जनाब सकीना को जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की आगोश से जुदा करने के बाद जिंदाने शाम के एक गुरफे में ले जाके कैद कर दिया। वो गुरफा कैसा था? गुरफा ऐसा था उसमें छत भी नहीं थे, और अगर लेटना चाहती थी तो उसकी दीवारें इतनी तंग थी, लेट भी नहीं सकती थी। हाँ अरबाब अज़ा इतना अंधेरा था, जब जनाब सकीना को उस गुरफे में रखा गया ना, रख के आने लगे, एक तो नन्हे हाथों को जोड़ा, हाथों को जोड़ने के बाद कहा भैया आबिद, मैं इस कमरे में, मैं इस गुरफे में अकेले न रह पाऊंगी, मैं तड़प के मर जाऊंगी, मुझे फूफी अम्मा के पास कर दो। ऐ भैया आबिद मुझे अम्मा के पास कर दो। ऐ भैया आबिद मैं नहीं रहूंगी, मैं कोई शिकवा नहीं करूंगी, इतना करम कर दो, इन जालिमों से कह दो कि मुझे फूफी अम्मा की आगोश
कि जनाब सकीना एक मरतबा बहुत चीख के रोना शुरू कर देती हैं। जब रोना शुरू कर देती हैं ना, एक मरतबा अहले हरम में कोहराम मच जाता है। अहले हरम में कोहराम मच जाता, एक मरतबा दरबार से कि कोई आता है, आने के बाद कहता है क्या हुआ है कि इस कैद खाने में इतना शोर है, इतना रोने की, इतना गिरिए की आवाज़ क्यों है। एक मतलब कोई कहता है कि हुसैन की 4 साला यतीमा ने अपने बाप को ख्वाब में देख लिया है। जब से ख्वाब में देखा है गिरिया कर रही है, उसकी आवाज़ में इतना दर्द है कि अहले हरम जो है ताब नहीं ला पा रहे हैं, अहले हरम भी रो रहे हैं। एक मतलब मलून हुक्म देता है कि ले जाओ सर हुसैन को ले जाके सकीना की आगोश में दे दो। एक मरतबा जालिम कहता है, लेके आता है सर, लाने के बाद जनाब सकीना की आगोश में सर को देता है। जैसे ही जनाब सकीना ने अपने बाबा के सर को देखा, देखने के बाद एक मरतबा जनाब सकीना ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर से मुखातिब होकर कहता है, ऐ बाबा, ऐ मेरे प्यारे बाबा, जरा आंखें तो खोलो। आंखें खोलने के बाद बताओ, अच्छा ये बताओ, क्या आपने कभी ऐसी कोई ज़ईफ़ा देखी है जो 4 साल में इस कदर ज़ईफ़ हो गई हो, जो 4 साल में ऐसी ज़ईफ़ हो गई हो कि उसके सर के बाल सफ़ेद हो गए हो। ऐ मेरे बाबा, जरा आंखें खोलो। आंखें खोलने के बाद ये बताओ, क्या आपने कभी कोई 4 साल की ऐसी बच्ची देखी है कि जिसके कानों की लवें फटी हुई है, जिसकी लवें से खून जारी हो। ऐ मेरे बाबा, जरा आप आंखें खोलो। आंखें खोलने के बाद बताओ, क्या आपने कभी कोई ऐसी 4 साल की बच्ची देखी है कि जिसके रुखसार पर तमाचों के निशान हो। ऐ मेरे बाबा, जरा आंखें खोलो। आंखें खोलने के बाद ये बताओ, क्या आपने कभी कोई ऐसी बच्ची देखी है कि जिसके सीने पर सिर्फ जख्मी जख्म हो, जिसके सीने पर ऊँट के चलने से छिन जाने के जख्म हो, जिसके सीना इस पर जख्मी हो, जिसकी आवाज़ नहीं लगती। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार हमारे करीब से बात करो फरमा, नबी के सामने चर्चा में करो फरमा, हमारे दर पर जहाँ पे फरमा, आने वाले की शादी में ये हुआ जिस तरीके से हमारे साथ सजाए इमाम हुसैन इस्लाम करते थे, जल्द से जल्द 2-3 लाख हम इसी तरीके से पूरी आज़ादी के साथ इमाम हुसैन इस्लाम की आज़ादा पकड़ें और उनके जुलूसों को निकालें और नफीस करें और दुश्मनों ने इस्लाम और दुश्मन